Hello my dear students, how are you? I think all of you are fine. Stay home, stay safe during pandemic COVID 2019. I am going to start a new topic of subject energy auditing and management, and the topic is Energy Conservation Act 2001 and its feature. Generally the question came in long answer type questions having 10 marks. So from the first slide to the last slide, concentrate and watch this video from the beginning to the end. And before that, if you are the students of electrical engineering in anywhere across the country, kindly subscribe my channel because this subject is newly introduced in the curriculum of electrical engineering in last 3 to 4 years, and in any university, in any particular electrical engineering syllabus in 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th or 8th semesters in electrical engineering. So guys, you can also refer these books I already shared in every slides to get the more knowledge and clearing your concepts regarding the particular topic Energy Conservation Act 2001 and its feature. I refer the material of Bureau of Energy Efficiency Energy Auditor, where the topic is clearly explain each and everything regarding the Energy Conservation Act 2001 and its feature. And this is the last topic of Unit 1 of Energy Auditing and Management in IKGPTU Kapurthala according to the syllabus of Electrical Engineering 7th semester. So guys, before that I can just introduce what is energy conservation. You know, the energy conservation is the proper utilization of electrical energy. That is called energy conservation. And for this particular energy conservation benefit, I already explained regarding the steps taken by Government of India like PCRA, Bureau of Energy Efficiency, already constitute in India, but it will be regularized when Energy Conservation Act 2001 introduced by Bureau of Energy Efficiency. So with the background of high energy saving potential and its benefit, bridging the gap between demand and supply, reducing environmental emission through energy saving, and to effectively overcome the barrier, the Government of India has enacted the Energy Conservation Act 2001. And this act provides the much needed legal framework and institutional arrangement for embarking on an energy efficiency drive. Third point is, under the provision of the Act, Bureau of Energy Efficiency has been established with effect from 1st March 2002 by merging erstwhile Energy Management Center of Ministry of Power. After Constitution of Energy Conservation Act 2001, Bureau of Energy Efficiency has been established in 2002. The Bureau would be responsible for implementation of policy program and coordination of implementation of energy conservation activity. And the smart city is also the part of this particular Energy Conservation Act 2001. But in your syllabus, you know already what is energy conservation, and the main topic is in your syllabus is the features of Energy Conservation Act 2001. So the features are important features of the Energy Conservation Acts are: first one is standards and labeling, second is designated consumers, third is certification of energy manager and accreditation of energy auditing firms, fourth one is energy conservation building codes, Central Energy Conservation Fund, Bureau of Energy Efficiency BEE, role of Bureau of Energy Efficiency, role of central and state governments, enforcement through self-regulation and penalties and adjudication. Means these are the important features in the Energy Conservation Act 2001, and we will learn about every particular features as per as your syllabus
in next slide. First one is standard and leveling. What is standard and leveling? Standard and leveling has been identified as a key activity for energy efficiency improvement. The main provision of Energy Conservation Act on standard and leveling are, these are the main provision. First provision is evolve minimum energy consumption and performance standard for notified equipment and appliances. Second is prohibit manufacturer sale and import of such equipments which does not conform to the standards. मीन्स हमें ऐसे पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर्स को रोकना होगा और उनको प्रोडक्ट को सेल करने से रोकना होगा जो हमारे स्टैंडर्ड को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं. थर्ड वन इज इंट्रोड्यूस ए मैंडेटरी लेबलिंग स्कीम फॉर नोटिफाइड इक्विपमेंट अप्लायंसेज टू इनेबल कंज्यूमर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस. तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं. और फोर्थ पॉइंट इज डिसमिनेट इंफॉर्मेशन ऑन द बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स. ओवरऑल हमें कंज्यूमर्स के बेनिफिट के हिसाब से पूरा का पूरा स्टैंडर्ड एंड लेवल जो है उसको मेंटेन करना होगा. नेक्स्ट है आपका डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स. द मेन प्रोविजन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट्स ऑन डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स आर, कंज्यूमर्स के लिए भी हमने पर्टिकुलर चीजें डिजाइन की है इस फीचर्स के अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट फीचर. फर्स्ट इज the government would notify energy intensive industries and other establishment as designated consumers. अब आप बोलोगे इसका क्या फायदा है, तो आपको मैं बता दूं, हमें पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स ऑल्सो द एनर्जी एफिशिएंसी एंड इट्स ऑल्सो द मेंटेन द पर्टिकुलर प्रोफाइल ऑफ द पावर सिस्टम की जो प्रोफाइल है, जैसे पावर फैक्टर है और ये सारी चीजें उसको मेंटेन करने के लिए. तो जो आप ये देख रहे हैं कंज्यूमर्स को जो गवर्नमेंट दे रही है इंटेंसिव, वो दे रही है कि अगर आपका पावर फैक्टर जो है वो लेस देन 0.8 है तो यू हैव सम पेनल्टी, और अगर आपका पावर फैक्टर विल मेंटेन मोर देन 0.9 तो आपका जो सिस्टम है अगर आपका 0.9 से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट आपको जो है वो उसके लिए अलग से बेनिफिट्स देती है, आपके बिल में कुछ ना कुछ सब्सिडी आपको प्रोवाइड कराती है. सेकेंड शेड्यूल टू द एक्ट प्रोवाइड्स लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स which covered basically energy intensive industries, railway, port trust, transport sector, power station, transmission and distribution companies and commercial buildings or establishment. Means पूरा का पूरा शेड्यूल होता है हमारे एक्ट प्रोविजन लिस्ट के अकॉर्डिंग. पर्टिकुलर जो हमारे कंज्यूमर्स है, जैसे रेलवे हमारा एक कंज्यूमर है बिग स्केल पे, उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स है, उसके बाद पावर स्टेशन है, सारे कुछ उन सब के लिए है. The designated consumer to get an energy audit conducted by an accredited energy auditor. ब्यूरो ऑफ एनर्जी जो कि पेपर कराती है पर्टिकुलर बीटेक के बाद आप एक एनर्जी ऑडिटर का पेपर दे सकते हैं. तो फ्री ऑफ कॉस्ट पर्टिकुलर कुछ इंडस्ट्रीज जो है उसके पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ऑडिट कराती है और उस ऑडिट के बाद वो लोग जो आउटपुट देते हैं उसमें वो लोग ये सारी चीजें बताते हैं कि हाउ यू कैन कंजर्व द इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल पावर जो आप अपने सब स्टेशन में या अपने इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो, उसको आप लोग कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर ऑडिट करवाई जाती है डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स के पर्टिकुलर जो उनका सिस्टम बना हुआ है उसको. नेक्स्ट वन इन एनर्जी मैनेजर्स विद प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड और डेजिग्नेटेड बाय द डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स. पर्टिकुलर कंज्यूमर्स के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी जो है एनर्जी एफिशिएंसी वो एक एनर्जी मैनेजर भी प्रोवाइड कराती है और हर एक इंडस्ट्री में एक एनर्जी मैनेजर होता है दैट विल मेंटेन द ओवरऑल पावर कंजम्पशन इन इंडस्ट्री. वो सारा का सारा चीज वो लोग मेंटेन करते हैं. नेक्स्ट वन इज डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स वुड कंप्लाई विद नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ एनर्जी कंजम्पशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. मींस वो पूरा का पूरा सिस्टम मेंटेन करता है एनर्जी कंजम्पशन का जो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मेंटेन करने के लिए कहा हुआ है एज पर एज द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स. Next is certification of energy managers and accreditation of energy auditors firms. The main activities in this regard is investigated in the act are a cadre of professionally qualified energy managers and auditors with expertise in policy analysis, project management, financial and implementation of energy efficiency. Projects would be developed through certification and accreditation program. Bureau of Energy Efficiency design training module and conduct a national level examination for certification of energy manager and energy auditors. मैंने आपको पहले ही कहा था कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो सारा का सारा आपका
ये सर्टिफिकेशन कोर्स कराती है एनर्जी मैनेजर का, एनर्जी ऑडिटर का, और छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्स भी कराती है टू मेंटेन ए पर्टिकुलर। एक प्रोफेशनल होते हैं वो सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स या मैकेनिकल इंजीनियर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और एक नेशनल लेवल का एक एग्जाम कंडक्ट करा के उनको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराई जाती है कि दीज आर दी रजिस्टर्ड एनर्जी ऑडिटर और एनर्जी मैनेजर्स। नेक्स्ट वन इज एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स। The main provision of the Energy Conservation Acts on Energy Conservation Building Codes are: the Bureau of Energy Efficiency would prepare guideline for Energy Conservation Building Codes (ECBC). These would be notified to suit local climate conditions or other compelling factors by the respective state for commercial building erected after the rules relating to Energy Conservation Building Codes have been notified. In addition, these buildings should have a connected load of 500 kilowatt or contract demand of 600 kVA and above and are intended to be used for commercial purposes. Means ये लोग जितने भी बिल्डिंग्स कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर बिल्डिंग कोड डिजाइन करके देती है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। उसमें क्या होता है, जनरली जो सारे भी बिल्डिंग के अंदर जो फीचर्स होते हैं जैसे हीटिंग का है, कूलिंग का है, एयर सर्कुलेशन का है, प्रॉपर इल्यूमिनेशन का है, वो सारा का सारा कोडिंग मेंटेन करके देती है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। और आपको अगर इसका एक एग्जांपल देखना है तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो चंडीगढ़ में है उसमें जो पेडा बिल्डिंग है, पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की जो बिल्डिंग है, वो एक गुड एग्जांपल है, आप वहां विजिट करके देख सकते हैं। द बिल्डिंग गेट ए 5 स्टार रेटिंग फ्रॉम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और ईसीबीसी। ईसी जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है उसके अकॉर्डिंग उस बिल्डिंग को 5 स्टार रेटेड दिया है, बिकॉज दे मेंटेन द proper cooling and ventilation as well as heating and illuminating, a standard maintained by Bureau of Energy Efficiency. Next is energy audit of a specific designated commercial building consumers would also be prescribed. तो ये भी हमारा एक पार्ट आता है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के बिटवीन। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं दैट विल बी द सेंट्रल एनर्जी कंजर्वेशन फंड। द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट्स इंप्रूव इन दिस केस आर: the fund would be set up the center to develop the delivery mechanism for large scale adoption of energy efficiency services such as performance contracting and promotion of energy service companies. The fund is expected to give a thrust to R&D and demonstration in order to boost market penetration of efficient equipment and appliances. It would support the creation of facilities for testing and development and to promote consumers awareness. आपने देखा होगा जनरली आजकल जब आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल अपने जमा कराने जाते हैं तो बिल के साथ आपको सब्सिडाइज रेट पे वो लोग एलईडी बल्ब प्रोवाइड कराते हैं। तो वो जो सब्सिडाइज रेट है वो इसी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के थ्रू कुछ फंड जनरेट किया जाता है जिसके थ्रू ये सारा का सारा मैकेनिज्म बनता है। उसके अलावा जो आपका का पूरा आप जो देखते हो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें भी बहुत सारे फंड दिए गए हैं टू डू सम रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। उसके लिए आप काम कर सकते हैं। आजकल बहुत ज्यादा काम चल रहा है एनर्जी एफिशिएंसी, पर्टिकुलर थर्मल और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजर्वेशन। उसके बाद है आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी में, इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। द मिशन ऑफ ब्यूरो एनर्जी एफिशिएंसी इज टू इंस्टीट्यूशनलाइज एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज, enable delivery mechanism in the country and provide leadership to energy efficiency in all sections of economy. The primary objective would be to reduce energy intensity in the Indian economy. It means जो मैंने पहले के लेक्चर्स में भी आपको ग्राफ बताया है कि एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा और एनर्जी इंटेंसिटी जो है इंडिया का वो काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज। तो उसको मेंटेन करने के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड भी तैयार किया हुआ है और इसीलिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को बनाया गया। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिड्यूस एनर्जी इंटेंसिटी इन द इंडियन इकोनॉमी। जो एनर्जी इंटेंसिटी है इसको इंडियन इकोनॉमी में ये कैसे रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट इज द जनरल सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द ब्यूरो इज वेस्टेड इन द गवर्निंग काउंसिल विद 26 मेंबर्स। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी में 26 मेंबर्स है। The council is headed by Union Minister of Power and consists of members represented by secretaries of various line ministry, the CEO of technical agencies under the ministries. ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। The Director General of Bureau shall be the ex-officio member secretary of the councils. ये सारे एक्स मेंबर्स होते हैं। ओवरऑल पूरा का पूरा इनका ये जो
एक पर्टिकुलर जो इनका मैनेजमेंट है वो डिजाइन किया गया है, यहाँ पे वो बताया गया है। द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी विल बी इनिशियली सपोर्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ग्रांट थ्रू बजट। पर्टिकुलर बजट में उनका कुछ ना कुछ हमें अमाउंट देना होता है। इट विल हाउएवर इन ए पीरियड ऑफ 5 to 7 years बिकम सेल्फ सफिशिएंट। इट वुड बी ऑथराइज्ड टू कलेक्ट एप्रोप्रिएट फी इन द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शनल असाइन टू इट। जो इन्होंने एनर्जी ऑडिटर और एनर्जी मैनेजर बना रखे हैं उनके थ्रू ये पर्टिकुलर कुछ इनकम भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट से भी कुछ इनको बजट मिल रहा है। अब इसके बाद आता है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी तो आपने 2002 में एस्टेब्लिश कर लिया, मार्च 2002 में। देन व्हाट इज द रोल ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का रोल क्या है? द रोल ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वुड बी ए prepare a standard and label of appliances and equipments, develop a list of designated consumers, specify certification and accreditation procedure, prepare building codes, maintain central energy conservation fund and undertake promotional activities to coordinate with central and state level agencies. The role would include development of energy services companies ESCO, transforming the market for energy efficiency and create awareness through measure including clearing houses। तो ये पूरा का पूरा अवेयरनेस कैंपेन करने के लिए एक पर्टिकुलर बजट भी इनको मिलता है। ये पूरा का पूरा प्रमोशन करते हैं कि हाउ द इलेक्ट्रिसिटी विल कंजर्व और थर्मल एनर्जी विल कंजर्व। सो दिस इज द रोल ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। What is the role of central and state government? Central role is to notify rules and regulations under various provision of the act, provide initial financial assistance to Bureau of Energy Efficiency and Energy Conservation Fund, coordinate with various state governments for notification, enforcement, penalties and adjudication। तो ये सारा का सारा जो है वो सेंट्रल का काम है। ये एक रोल है इनका टू मेंटेन द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। नेक्स्ट है स्टेट का टू अमेंड एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड टू सूट द रीजनल एंड लोकल क्लाइमेट कंडीशन, टू डेजिग्नेट स्टेट लेवल एजेंसी टू कोऑर्डिनेट, रेगुलेट एंड इन्फोर्स प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड कंस्टिट्यूट ए स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन फंड फॉर प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। एवरी स्टेट को सेंटर की तरह अपना एक पर्टिकुलर फंड जनरेट करना पड़ेगा और एक पर्टिकुलर अपना एक एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड डिजाइन करना पड़ेगा एज पर एज देयर एनवायरमेंटल कंडीशन। राजस्थान की क्या एनवायरमेंटल कंडीशन है उसकी अलग बनेगी। आप अगर ओडिशा की बात करेंगे वहां की अलग बनेगी। आप अगर चेन्नई की बात करेंगे तो वहां की अलग बनेगी। आप अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो वहां पे अलग होगी। तो ईच एंड एवरीवेयर जो भी सारे कोड और ये सारे चीज रहेंगे उसके हिसाब से हम पूरा का पूरा ये मैकेनिज्म डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए इन्फोर्समेंट थ्रू सेल्फ रेगुलेशन। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट वुड रिक्वायर इंस्पेक्शन ऑफ एनी टू आइटम्स। द फॉलोइंग प्रोसीजर ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इज प्रपोजल टू बी अडॉप्टेड फॉर वेरीफाइंग एरियाज दैट रिक्वायर इंस्पेक्शन ऑफ ओनली टू आइटम्स दैट require inspection. First one is the certification of energy consumption norms and standard of production process by the accredited energy auditors is a way to enforce effective energy efficiency in designated consumers। ये पूरा का पूरा सर्टिफिकेशन जो हमारा है वो पूरा का पूरा एक एनर्जी ऑडिटर के थ्रू एक डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स के साथ लिंक अप करके किया जाए। सेकेंड कहता है द एनर्जी परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरर्स डिक्लेयर्ड वैल्यूज वुड बी checked in accredited laboratories by drawing sample from market. Any manufacturer or consumers or consumer associations can challenge the value of the other manufacturer and bring to the notice of Bureau of Energy Efficiency, and Bureau of Energy Efficiency can recognize for challenge testing in disputed cases as a measure for self regulation। अगर किसी भी तरह का एनवायरमेंटल एमिशन या हम लोग देख रहे हैं कि वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो रही है पर्टिकुलर इंडस्ट्री में तो हम उसकी कंप्लेन जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को करें एंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कैन रिकॉग्नाइज फॉर चैलेंजिंग टेस्टिंग इन उसका प्रॉपर उसको चैलेंज करेगी कि आप उस पर्टिकुलर सिस्टम्स को क्लोज करिए या हमारे किसी ऑडिटर या एनर्जी मैनेजर से उसका प्रॉपर ऑडिट कराइए। देन यू हैव टू कंटिन्यू योर वर्क विद दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट जो आपका है वो है पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन। Penalties for each offence under the Act would be in monetary terms
that is rupees 10,000 for each offence and rupees 1,000 for each day for continued non compliances. मीन्स इफ अगर हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री ये चीज को मेंटेन नहीं कर रही है तो हम उसको 10,000 रुपीज की पेनल्टीज लगा सकते हैं और 1,000 रुपीज पर डे फाइन कर सकते हैं अगर वो उस कंप्लायंस को हमें नहीं कर रहा है कंटिन्यू उस केस में. नेक्स्ट इज द इनिशियल फेज ऑफ 5 years वुड बी promotional and creating infrastructure for implementation of act. No penalties would be effective during this phase. शुरू के 5 साल में हम किसी तरह की पेनल्टी नहीं लगाते, लेकिन अगर देखते हैं कि वो सारा चीज हो रहा है तो हम उसको पर्टिकुलर पेनल्टी ठोक सकते हैं उसके ऊपर. नेक्स्ट है द पावर टू एडजुडिकेशन हैज बीन वेस्टेड विद स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन which shall appoint any one of the member to be an adjudicating officer for holding an inquiry in connection with the penalty imposed. अब अगर हमने किसी के थ्रू किसी के ऊपर पेनल्टी लगाई है तो कुछ इन्वायरमेंटल एमिशन के लिए, अनवांटेड गैस के लिए या एनर्जी को प्रॉपर वो लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं उस चीज के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कमेटी बनेगी और उस कमेटी का काम होगा पूरा का पूरा इंस्पेक्ट करना. तो जो आपने ये चीज देखा, मैंने आपको सारे फीचर्स बताए हैं आपको एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001. तो सबसे बिग एडवांटेज जो हुआ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का वो ये हुआ कि इन ईयर ऑफ 2002 मार्च 2002 में क्या हुआ, आपका एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एस्टेब्लिश हो गया. आफ्टर पीसीआरए ये सेकंड बिग एजेंसी हुआ जिसने ओवरऑल एनर्जी के सेक्टर में ये काम कर रही है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. और इसके आने के बाद बहुत सारी चीजें रेगुलराइज हुई, बहुत सारी चीजों को ऑडिट किया गया और वहां पे हमने एनर्जी सेविंग करी, जिसके कारण जो हमारा एनर्जी इंटेंसिटी था, इकोनॉमी पे जो लो था, उसको हमें कम किया है, उसको हम बढ़ा रहे हैं. तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो आप इसमें पढ़ेंगे. और आपका जो मेन क्वेश्चन आएगा यूनिवर्सिटी पेपर में, द क्वेश्चन इज यू कैन राइट द फीचर्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट. डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहीं के, और आप डिटेल में इसको पढ़ लीजिए क्योंकि कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट कब आया, इसके क्या क्या फीचर्स है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कब एस्टेब्लिश हुई, एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में आप क्या जानते हो. और आप अगर ये इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं तो आप पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम को ऑडिट भी कर सकते हैं. ये सारा का सारा सिस्टम आपको इसमें पता चलेगा. और मैंने आपको पहले ही कहा है, इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन एनी वेयर अक्रॉस द कंट्री यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड. और आप डीप नॉलेज के लिए और एडिशनल नॉलेज के लिए रेफर कर सकते हैं दीज बुक्स. एंड आपको हर एक टॉपिक का, इवन दिस टॉपिक ऑल्सो, आपको अपडेटेड वर्जन जो है, जो आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स के बियॉन्ड जो आपको नॉलेज चाहिए, दैट विल बी डिलीवर्ड इन बाय मी इन द मंथ ऑफ जनवरी. बिफोर दैट आई जस्ट क्लियर योर पेपर ओनली. तो मैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जितना पैरामीटर्स होना चाहिए, जितना टाइम दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर कैरिकुलम, उतने ही टाइम ड्यूरेशन में एंड एज पर एज योर कोर्स में उस पर्टिकुलर टॉपिक को कंक्लूड करता हूँ. ठीक है, क्योंकि जितना टॉपिक आपको आना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, उस कैरिकुलम के हिसाब से, उतना मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ. अपडेटेड लेक्चर्स के लिए यू हैव टू वेट इन द मंथ ऑफ जनवरी. जब मैं सारा ये कंप्लीट कर लूंगा एक सेमेस्टर का, देन इन द मंथ ऑफ जनवरी मैं आपको इसका अपडेटेड वर्जन जो है वो रिलीज करूंगा. तब आप एडिशनल नॉलेज इसके बारे में ले सकते हैं. तब तक के लिए आप पर्टिकुलर इस यूनिवर्सिटी के टॉपिक के हिसाब से जितना आपका कंटेंट है, इसको फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट आप वॉच करिए. और इफ़ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए. थैंक यू.